honor to be here. मेरे लिए बहुत ही इज्जत और तस्लीम की बात है कि आज मैं आप सबके दरमियान मौजूद हूँ। What an awesome welcome into this home, into this region, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जब आपने हमें वेलकम किया and into this community. और इस माशरे में। Thank you so much for putting together the presentation. और खुदावंद में कि मैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ जो आपने प्रेजेंटेशन दी, वेलकम की। And for the two young men that were up here presenting with the young lady, और जो दो बच्चों ने और एक छोटी बच्ची ने प्रेजेंट किया, I felt the pain of the little boy in the middle. और मैंने बहुत ही खुशी को महसूस किया। That's what I was like. और मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ। Praise the Lord. Praise to the Lord. But that's all right. Amen. Amen. All right. Well, tonight I just want to share with you और आज की रात में आपसे बयान करना चाहता हूँ from truth from God's Word. और खुदा के कलाम की चंद आयत। I want you to understand that God is faithful to His Word. और खुदा का कलाम सिखाता है कि खुदा ईमानदार है और वो अपने काम जो वो कहता है वो करता है। And God alone will watch over His Word to perform it in your life. और खुदा चाहता है कि वो अपने अजीब और जलाली काम आप सबकी जिंदगियों में रखे। And so I know that there are many that can hear us tonight that aren't in this room. और मैं जानता हूँ कि बहुत सी जिंदगियाँ आज यहाँ पे मौजूद हैं जो कि खुदा के कलाम को सुनना चाहती हैं। And so in just a minute I'm going to describe who Jesus is. और आज खुदा का कलाम हमें बयान करता है। And as I give you a description of who Jesus really is, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जीसस क्राइस्ट कौन है। you will understand why He is serious about His Word. और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि क्यों उसने कलाम का इस्तेमाल किया। And you will recognize why He watches over His Word to perform it. और वो क्यों देखता है ताकि आप खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी में लें और वो खुदा जो असीम खुदा है आपको देखता है। The Word of God teaches us that God is not a man that He should lie, nor the Son of Man that He should repent. और खुदा का कलाम सिखाता है कि खुदा जो है कामिल खुदा है और इंसान भी है और वो खुद इंसान बनकर इस जमीन पर आया। That God Almighty, the Creator of heaven and earth, is not a man that He should lie. क्योंकि जो आसमान और जमीन का खलक करने वाला है वो खुदा है, वो इंसान नहीं है लेकिन वो इंसान बनकर आया। And from the Word of God we recognize that the Word tells us what God has said He will do. और खुदा का कलाम सिखाता है कि जो कुछ खुदा ने कहा और वो हो गया। It says, has He said it and shall He not do it? और वो ऐसा नहीं कहता जो वो हो ना सके। And so we see from God's Word, God gives us an understanding who He is in His character. और जब हम खुदा के कलाम का मतालिया करते हैं तो खुदा का कलाम हमें इस बात की समझ अता करता है कि खुदा कौन है। And so many from many cultures around the world believe that God is the creator of all things. हम देखते हैं कि दुनिया में बहुत से मज़ाहिब हैं जो ये इस बात को समझते हैं कि खुदा है जो कि खलक करने वाला है। That God Almighty is the one that stretched out the heavens like a curtain. और वो खुदा है जिसने आसमान को एक चादर की मानिंद फैलाया है। He's the one that can measure the oceans in the palm of His hand. और वो खुदा है जो समुद्र को अपनी हथेली में समा सकता है। He's the one that's everywhere all the time. और वो खुदा है जो एक ही वक्त में हर जगह पे मौजूद है। There's no place He is not. और वो ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ पे खुदा मौजूद ना हो। And He sees and knows each and every one of you. वो आप सबको देखता है और आप में से हर एक को जानता है। So the God that we profess और जब वो खुदा है is not a God who's in heaven and angry with mankind. और वो खुदा ऐसा खुदा नहीं है जो बनी नौ इंसान से नाराज हो। The God that we profess is the God who created all things, and when He created it, He said it's good. और वो खुदा अजीम खुदा है जिसने तमाम कायनात को बनाया और तमाम कायनात को बनाने के बाद उसने कहा कि सब अच्छा है। And found in the ancient scriptures, there's also an understanding that when God created man, और क्योंकि खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि खुदा ने किस तरह से बनी नौ इंसान को बनाया। on the sixth day God created mankind. और 6 दिन के अंदर खुदा ने छठे दिन खुदा ने बनी नौ इंसान को बनाया। He didn't say man was just good. He said it's very good. और खुदा ने जब इंसान को बनाया तो उसने ये नहीं कहा कि अच्छा है बल्कि उसने कहा कि बहुत अच्छा है। And so when God Almighty made man, और जब खुदा ने बनी नौ इंसान को बनाया He made you in His image and after His likeness. और उसने आपको अपनी छवि पर बनाया। He created you in His
after his likeness. और उसने आपको छवि पे बनाया क्योंकि उसको पसंद आया कि वो उस इंसान को अपनी छवि पे बनाए। And when he created man, he gave mankind a command. और फिर जब उसने बनी नौ इंसान को बनाया तो उसने उसको एक हुक्म दिया। And in this command we find the will of God. और ये जो हुक्म है हमें मिलता है खुदा की जिंदगी वश कलाम में। This is God's will for all of mankind in every nation, tribe and tongue. और खुदा की ये ख्वाहिश है, खुदा की ये मर्जी है कि दुनिया की तमाम जो कौमें हैं, And in God's will for every one of us, he says, be fruitful, multiply, replenish, subdue the earth, and have dominion over it. और ये मर्जी खुदा की तमाम इंसानियत के लिए है कि वो बढ़े, फले और जमीन को ममूर और महकूम करें। So I'm going to need you to help me for just a minute. और मुझे आप सबकी मदद की जरूरत है सिर्फ 2 मिनट के लिए। This is not for me, this is for you. और ये मेरे लिए नहीं है बल्कि आप सबके लिए है। But I want you to tap your neighbor on the shoulder मैं चाहता हूँ कि आप अपने हमसाये के शोल्डर को टच करें and tell him God made you in his image. और एक दूसरे से कहें कि खुदा ने हमें अपनी छवि पर बनाया है। Come on, tell him God made you in his image. एक दूसरे से कहें कि खुदा ने हमें एक दूसरे अपनी छवि पर बनाया है। And God gave command to you और खुदा ने आपको हुक्म दिया, सब बोले, to be fruitful, to multiply, to replenish, to subdue, and have dominion over the earth. ताकि आप बढ़े फलें और जमीन को ममूर और महकूम करें और आपको तमाम दुनिया की चीजों पर खुदा ने तसल्लुत बख्शा। Now tell your neighbor, he's talking to you. और वो अपने हमसाये से कहें कि खुदा आज आपसे बात कर रहा है। Come on, tell him don't fall asleep, he's talking to you. और अब खुदा के खादम कह रहे हैं कि एक दूसरे से लाजमी कहें कि खुदा ने हमें बनाया अपनी छवि पर। God gave mankind dominion over the earth. और खुदा ने बनी नौ इंसान को तसल्लुत बख्शा है। And so as man was created in God's image and after his likeness, the Spirit of God spoke to man and told him to dress and keep the garden. और जब खुदा ने बनी नौ इंसान को बनाया अपनी मर्जी के मुताबिक तो फिर इंसान को उसने एक हुक्म दिया कि तुम जो है बाग अदन की हिफाजत करो। Now I know many of you are familiar with the story of creation. मैं जानता हूँ कि आप सब जो है एक तख्लीक की कहानी के बारे में जानते हैं। And so as God made man in his image and after his likeness, और जब खुदा ने बनी नौ इंसान को अपनी मर्जी के मुताबिक बनाया, every human being is a three-part being, just as God himself is. और जो हर एक बनी नौ इंसान है उसके 3 हिस्से हैं जिस तरह के खुदा के हैं। Every human being living on planet Earth, they are a spirit. और जितने भी बनी नौ इंसान इस जमीन पर रहते हैं उनके अंदर रूह पाया जाता है। They live in their bodies और वो जो जिंदगी जो रूह है वो उनकी जान के अंदर रहता है। and they have a soul, a mind, a will, and emotion. और इंसान के अंदर ख्यालात पाए जाते हैं, इमोशंस पाए जाते हैं और रूह पाया जाता है। That's how we're made. और जो खुदा ने बनाया है That's how God created us. और जो हमारी जिंदा खुदा ने क्रिएट किया है। I am a spirit. और मैं रूह हूँ My spirit lives in my body, और जो मेरी रूह है वो मेरे बदन के अंदर है। and I have a soul. I have a mind, a will, and an emotion. और मेरे पास ज़हन भी है, मेरे पास रूह भी है। And so in God's original plan, और खुदा का जो हकीकी तौर पर मकसद है he gave mankind dominion over all of the earth. वो इन बनी नौ इंसान को तसल्लुत बख्शा है तमाम दुनिया पर। And so for however long it was, और ये हम देखते हैं कि चाहे जितना मर्जी लंबा हो, Adam and Eve went about doing what was right before God. और आदम जो और हवा ने खुदा के हजूर कुछ काम किया। They exercised dominion to dress and keep the garden. और उन्होंने क्या किया जो खुदा ने इनको काम दिया था कि बाग अदन की हिफाजत करें। But we all know that that didn't last forever. और हम खुदा के कलाम के बारे में, इस कहानी के बारे में बेहतर तौर पर जानते हैं। For there in the garden, a fallen angel named Lucifer or Satan और हम देखते हैं कि बाग अदन में जो इब्लीस है, जो लूसीफर है, आता है tempted mankind by using the word of God. और वो खुदा के कलाम को इस्तेमाल करके बनी नौ इंसान को आजमाइश में डालता है। Now this is very important. और ये बहुत ही अहमियत के हामिल है। God's will is absolute. और जो खुदा की मर्जी है वो बिल्कुल परफेक्ट है।
In the English language, और जो इंग्लिश की जुबान में, we use what we call an exclamation point to make a statement. और फिर जब इसका तर्जमा किया जाए तो इसका मतलब ये निकलता है कि एग्जैक्ट जो वर्ड है वो बयान किए जाएं। When we say something and we want to say it with force, और वो अल्फाज जो हम कुछ कहते हैं और जिन पर हम थोड़ा जोर देकर कुछ अल्फाज कहते हैं, and we write down what we said, we finish the sentence with an exclamation. और फिर हम कहते हैं कि हम एक हदबंदी करते हैं कि इस हदबंदी में आपने रहना है। You need to understand that everything in God's word concerning His promises ends with an exclamation. और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो खुदा का कलाम है वो उसमें अहकाम बताए गए हैं जिनके मुताबिक हमने जिंदगी गुजारनी He है, doesn't change His mind. He doesn't take it back. और उसमें क्या है, वक्त नहीं लगता, It's His will. It's His word. और ये खुदा की मर्जी है। God's word is God's will. खुदा की जो मर्जी है वो खुदा का कलाम है, And He'll not change His word or His will for mankind. और वो इंसान के लिए अपनी मर्जी को नहीं बदलता, So God said it, क्योंकि खुदा ने कहा and He will do it. और उसने ऐसा किया Be fruitful, कि बढ़ो, multiply, भलो replenish, और जमीन को subdue, मूरो महकूम and करो have dominion. और तसल्लुत बख्शा। But when Satan came to man, लेकिन जब शैतान इंसान के पास आता है, Satan ended the sentence और जब जो शैतान है इंसान के पास आया with a question mark. तो फिर क्या सवाल हुआ। Now I don't know if this is translated correctly, और हम देखते हैं इसकी ट्रांसलेशन में, but what you have to understand जब आप इसको समझते हैं, is before sin there was never a question. और जब गुनाह नहीं था तो कोई सवाल नहीं था, Before sin came into the earth there was never a question. और जब तक जमीन पर गुनाह नहीं आया था तब तक कोई सवाल नहीं था। This is the will of God. ये खुदा की मर्जी है, We know who we are. हम जानते हैं कि हम कौन हैं, We have an identity as those that are created in His image and after His likeness. क्योंकि हमारी एक पहचान है, क्योंकि जो हमारा बनाने वाला है, We live under a command to be fruitful, multiply, replenish, subdue, and have dominion. क्योंकि हम उसके अहकाम के अंदर रहते हैं, क्योंकि उसने हमें कहा है कि बढ़ो फलो और जमीन को महमूर और महकूम करो। That's who we are and what we do. और वो हम कौन है कि जो हम खुदा के कलाम को रद्द कर सकते But हैं। when Satan came, लेकिन जब शैतान आता है he asked man, तो वो इंसान से कहता है, and he asked man a question. वो इंसान से एक सवाल पूछता है, Had not God said? क्या खुदा ने ऐसा कहा है? And then he began to twist the scriptures. और फिर वो आयत को बदलता है, And as he began to twist the scriptures, और जब वो आयत को बदल कर बताता है he presented temptation to Adam and Eve तो वो हवा और आदम के लिए एक आजमाइश को पैदा करता है, and said, don't you know that if you eat of the tree of the knowledge of good and evil, वो कहता है कि क्या तुम जानते हो कि जब तुम इस आबे हयात के दरख्त में से खाओगे you will become like God? तो तुम खुदा की मानिंद बन जाओगे। Now I have a question to ask you. तो उसने ये सवाल किया। If you're already created in God's image and after His likeness, तो मेरा सवाल आपसे है कि अगर जब आप खुदा की मर्जी के मुताबिक खुदा की छवि पर बनाए गए हैं, how much more like God could you be? क्या आप खुदा की मर्जी को पूरा कर रहे हैं? And this is what I want you to picture in your heart and in your spirit. और इसलिए मैंने तमाम कहानी आपको बयान की है ताकि आप इस कहानी के जरिए से कलाम को समझ सके। Before sin came into the earth, इससे पहले कि गुनाह इस जमीन पर आता, when Adam looked at God, और जब आदम जो है खुदा को देखता था, and when God looked at Adam, और जब जो आदम है खुदा को देखता it था, was like looking in a mirror. और वो एक शीशे की तरह देखते थे। God saw himself. खुदा अपने आप को देखता था Adam saw himself. और आदम भी अपने आप को देखता था, They were in the perfect image and likeness of one another. क्योंकि वो एक परफेक्ट इमेज पे बनाए गए थे एक दूसरे के लिए। So you see this. लेकिन आप देखते हैं, But when man ate of the tree of the knowledge of good and evil, लेकिन जब बनियो इंसान ने आबे हयात के दरख्त में से खाया, that which used to be a mirror where Adam could see himself in God and God could see himself in Adam, और वो मिरर जिसमें खुदा बनी आदम को देखता था और आदम खुदा को देखता था, the mirror was shattered into a million pieces. और फिर वो जो शीशा था वो टूट गया मुख्तलिफ तरफ में, And man was no longer in God's likeness. और खुदा जो बनियो इंसान है खुदा की मर्जी में नहीं रहा। Now the makeup of man still remained the same. और अब एक मसला पैदा हो गया, Spirit, soul and body. और हम देखते हैं कि जो रूह है और जो जिस्म है और जो हमारी स्पिरिट है,
But the spirit lost righteousness, जो रूह है उसमें से रास्तबाजी जाती रही lost the ability to see himself in God. और इस तरह से उसने वो जहानत, वो एबिलिटी खो दी कि जिसमें वो खुदा को देख सकता था। And this is how Satan entered the earth. और इस तरह से इब्लीस ने जमीन पर काम किया And from that day forward, और उस दिन से अब आगे mankind जो बनी नौ इंसान है has been picking up pieces of the broken mirror. और उसने क्या किया कि वो उस शीशे के जो टूटे हुए टुकड़े हैं उनको इकट्ठा कर रहा है। And through a shard of glass, they would try to see God in that shard of glass. अब वो छोटे शीशे के टुकड़े में से कोशिश करता है खुदा को देखने की And every now and then they would catch a glimpse of that which appeared to be truth. और वो देखना चाहता है कि मुकम्मल तौर पर खुदा नजर आए, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं होता The whole mirror was shattered, क्योंकि जो मुकम्मल शीशा था वो टूट चुका है, but now there's only a piece of the mirror. लेकिन अब सिर्फ शीशे के टुकड़े बचे हैं। And so as mankind began to try to describe his existence through a broken piece of the mirror, लेकिन जब इंसान कोशिश करता है कि जो शीशे के जो टुकड़े टूटे हैं उनको जोड़ सके, that's where the religions of the world came from. और फिर इस तरह से जो मजहब बनता है। Every religion is based on the broken piece of the mirror. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दुनिया में जितने भी मज़ाहिब बने हैं वो उनकी बुनियाद वो टूटा हुआ शीशा है। And so as much as these religions present to man और जितने भी जो मज़ाहिब हैं वो जो इंसान को बयान करते हैं some truth, और सब कुछ ऐसे हैं it's not the truth. और कुछ हकीकी मजहब है और कुछ हकीकी मजहब नहीं है। God hates religion. खुदा मजहब से नफरत करता है, He loves mankind. लेकिन वो बनीनो इंसान से मोहब्बत करता है। And so God had to figure out a way, not figure out a way, but God had to then come to repair the mirror. लेकिन खुदा आज आया है कि ताकि वो टूटे हुए शीशे को दोबारा से बना सके। And the only way that God could repair the mirror और एक ही वजह है कि खुदा उस शीशे को बनाना चाहता है was to repair the broken image that's in mankind. और वो उस छवि को जो टूट चुकी है दोबारा बनाना चाहता है। Well, there was a problem. लेकिन यहाँ पे एक मसला है, In order to repair the broken image, और एक तरतीब में उस शीशे को लगाने के लिए, it's not that it was impossible, और ये नामुमकिन है, it just couldn't be done. और फिर ये मुश्किल नहीं रहा क्योंकि खुदा ने इसको डन किया है, Because man had given up righteousness and dominion. क्योंकि खुदा ने बने इंसान को रास्तबाजी दी थी। Satan had stolen from mankind लेकिन जो शैतान ने इब्लीस से उस रास्तबाजी को छीन लिया what belonged to him और जो आपसे ताल्लुक रखती थी, and took the dominion that man had और जो तसल्लुत खुदा ने इंसान को बख्शा था, and literally began to have dominion over the earth. और वही तसल्लुत जो पूरी दुनिया पर खुदा ने इसको बख्शा And था। so Satan became the god of this world system. और फिर इब्लीस इस दुनिया में आ गया। Now don't get mad at me, और मैं आपको बताना चाहते 'cause I'm हैं, about to tell you the truth. और मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, Satan is the god of man's religions. और खुदा जो इब्लीस है वो इस मजहब को बनाने वाला है। And I don't care what religion that is. और मुझे कोई परवाह नहीं है कि मजहब क्या है, Satan is the god of this world system. लेकिन जो इब्लीस है इस दुनिया का खुदा बना हुआ है, And he's the god of the broken mirror. और वो टूटे हुए शीशों का खुदा है, And he loves confusing humanity. और वो चाहता है कि जो बनीनो इंसान को कंफ्यूज करे, He doesn't care if you're in South Asia और वो इस बात की केयर नहीं करता, or in Far East Asia और उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो लोग हैं वो ईस्ट के हों या वेस्ट के हों, or in the United States of America और हो सकता है कि वो यूनाइटेड स्टेट के हों, or in the far north or far south. और हो सकता है कि वो साउथ के हों या नॉर्थ के हों, He will let man define himself by religion. और वो चाहता है कि बनीनो इंसान को मजहब में उलझा कर रखे। And so some called themselves Buddhists, और सम जो कुछ ऐसे लोग हैं जो बुतों को मानते हैं, some called themselves Muslims, और कुछ ऐसे लोग हैं जो मुस्लिम हैं, some even called themselves Catholics, और सब कुछ ऐसे लोग हैं जो दूसरे मज़ाहिब से ताल्लुक रखते हैं, or any other religion that exists. और दूसरे मज़ाहिब से जो यहाँ पे मौजूद है। Atheism. और आपको बताना चाहते All हैं, of these are religions that exist in the earth. और जितने भी मज़ाहिब इस दुनिया में मौजूद हैं, And all of them are ruled by the God of this world system. और तमाम की जो जड़ है वो खुदा की उस टूटे हुए शीशे पर है। And this is why the world continues to be in chaos. और इसलिए हमें क्या लगातार
समझने की जरूरत है कि खुदा आज हमसे क्या चाहता है। This is why the Word of God tells us that every mankind, every man on planet Earth has sinned and come short of God's glory. इसलिए खुदा का कलाम फरमाता है कि बनी नौ इंसान ने, हर इंसान ने गुनाह किया और तमाम खुदा के जलाल से महरूम हो गए। So God knew the only way that He could repair the image of God और एक ही हल खुदा ने निकाला कि किस तरह से उस टूटे हुए शीशे को दोबारा बनाया जाए। because remember I said और आप याद रखें जो मैंने अभी आपको बताया है, God Himself is not a man. लेकिन खुदा खुद से एक इंसान नहीं है। The Bible says He's the Father of all spirits. और वो खुदा का कलाम सिखाता है कि वो रूहों का बाप है। The Bible says He is love. It is His character. और खुदा का कलाम सिखाता है कि जो खुदा है वो मोहब्बत है अपने किरदार में। So God's not a man that He should lie. और वो खुदा ऐसा खुदा नहीं है जो झूठ बोलता है। And what He said He'll bring to pass. और वो आपके माजी के बारे में क्या कहता है। So God is not a man, लेकिन खुदा जो है इंसान नहीं है, but in order to repair the image, लेकिन वो फिर भी आपके इमेज को रिपेयर करना चाहता है। He became a man. लेकिन वो आपके इमेज को रिपेयर करने के लिए खुद इंसान बना। And from before the foundations of the world, और फिर इससे पहले कि जमीन की बुनियाद बनती, He put a word into existence. और फिर उसने इस दुनिया में कलाम की बुनियाद रखी। Now those of us that are believers in Jesus Christ और जितनी जिंदगी खुदा यीशु मसीह पे ईमान रखती हैं, recognize that the Bible teaches us that in the beginning was the Word. क्योंकि जब खुदा का कलाम सिखाता है कि इब्तिदा में The Word itself existed before creation. और खुदा के पूरी कायनात के बनाए जाने से पहले कलाम खुद मौजूद था। God's will existed before anything was ever made. और इससे पहले कि कुछ भी बनाया जाता खुदा खुद मौजूद था। And it goes on to tell us that it's through the Word of God that everything that was made was made. और आपको खुदा का कलाम सिखाता है कि जो कुछ बनाया गया है बनो इंसान के लिए बनाया गया है। So God put within His Word, और खुदा ने अपने कलाम को रखा within His will, और अपनी मर्जी को prophesied from the beginning of time और फिर उसने नबूवत की आने वाले वक्त के बारे में that at the point of sin, when man broke the image and gave dominion over to the God of this world system, और फिर हम जानते हैं कि किस तरह बनिनो इंसान ने गुनाह किया और जो शीशे को तोड़ा और वो खुदा के इख्तियार से बाहर हो गया। it's found in the book of Genesis chapter 3 और हम देखते हैं ये जो तमाम जो कहानी हमें पैदाइश 3 बाप में मिलती है, that God Almighty addresses Satan, और फिर जो खुदा कातिल मुतलक खुदा है, who is the God of this world system, and says on your belly you're going to go. और वो खुदा जिंदा खुदा है, And there comes a time और वो अपने वक्त पर that even though you're going to bruise the heel of my creation, और खुदा जो है अब जिंदा खुदा है और वो जानता है I'm going to crush your head. और वो इब्लीस को वो आपके पाँव के तले के नीचे काट देगा। For the seed of the woman will come into the earth, और वो आपको खुदा का कलाम सिखाता है कि वो एक माँ से पैदा होगा and bruise or crush the head of Satan under his feet. और वो आपको शैतान को उसकी एड़ी के नीचे कुचलेगा। And so from that prophecy found in Genesis chapter 3, और ये जो है जो नबूवत है वो पैदाइश 3 बाप में मिलती है। throughout the Pentateuch, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy, और हम देखते हैं कि पहली जो तवारीख की किताबें हैं ये हमें ड्यूटोनमी में, इस्तिश्ना में, खरूज में, अखबार में, सारी किताबों में ये कहानी there मिलती है। begins to be a revelation of who God is given to mankind. और फिर यही बात हमें रेवलेशन में, मुकाशमा में मिलती है कि किस तरह से खुदा ने प्लान किया। And from that, the prophets began to prophesy. और फिर हम देखते हैं कि किस तरह जो है खुदा के बंदों ने नबूवत की। And God spoke expressly that there would be a time where Emmanuel, God with us, would come into the earth. और इस बात की भी नबूवत की कि जो है खुदा एक बेटा पैदा होगा जिसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका तर्जुमा है कि खुदा हमारे साथ है। Even prophesying that he would be born of a virgin. और इससे ये भी नबूवत की कि वो एक कवारी से पैदा होगा। Prophesying when he would be born and where he would be born. और हम वो ये भी प्रोफेसी की कि वो किस जगह पे पैदा होगा और किस वक्त पैदा होगा। And even declaring before he was ever made
that his name would be Jesus. और इससे पहले कि वो दुनिया में आता, उसके आने से पहले बहुत सी गवाहियां दी गई। And so even though God is not a man, we understand he became a man. और इस बात को हम जानते हैं कि जो हमारा खुदा बाप है वो इंसान नहीं था, लेकिन वो इंसान बनकर इस जमीन पर आया। And as a man, he lived and walked on planet Earth for 33 years. और क्योंकि वो इंसान बनकर इस जमीन पर 33 साल के लिए रहा। The difference between him and us और उसमें और हम में फर्क क्या है? is as a man and as God, और क्योंकि वो खुद मुकम्मल इंसान भी है और मुकम्मल खुदा भी है, he never sinned. उसने कोई गुनाह नहीं किया। He never sinned. उसने कोई गुनाह नहीं किया He walked right with God the entire time. और वो हमेशा खुदा के साथ चलता रहा। No other man can ever claim that. और भी कोई भी इंसान उस पर गुनाह नहीं साबित कर सकता। And Jesus walked before God और जो यीशु मसीह है, because he is God क्योंकि वो खुद खुदा है, and he had no sin. उसकी जिंदगी में कोई गुनाह नहीं है। This was the requirement. और ये क्या है? एक रिक्वायरमेंट है। For this is the only way that God can repair the image. और एक ही वजह है कि खुदा उस शिष्य को दोबारा से रिपेयर करना चाहता है। This is the only way that God can give back dominion that had been taken. और एक ही रास्ता है, खुदा वो तसल्लुत, वो इख्तियार दोबारा से बनी हुई इंसान को देना चाहता है। Because the God of this world system had possessed the dominion, क्योंकि जो बनी हुई इंसान है उसने उस इख्तियार को खो दिया है। was ruling over religions and ruling over mankind, और वो खुदा जो तमाम कायनात का और तमाम मज़ाहिब का खुदा है, was in complete rulership over the earth while Jesus was alive. और खुदा बाप के तमाम इख्तियार है तमाम मज़ाहिब पर। You remember when Jesus was on the earth, और आप इस बात को याद रखते हैं कि जब खुदा यीशु मसीह जमीन पर थे, Satan even came to him to tempt him to sin. और फिर इब्लीस जब खुदा यीशु मसीह जमीन पर थे तो इब्लीस खुदा को आजमाने के लिए आता है। After 40 days and nights of fasting, और जब रोजा रखने के बाद 40 दिन में you have power. आप उसके पास कुदरत है। If you want to make these stones bread, you can. इब्लीस खुदा को आजमाता है यीशु मसीह को, उसको कहता है कि तू चाहे तो ये जो पत्थर है तेरे लिए रोटियां बन सकती हैं। Jesus tells Satan, और फिर जो खुदा यीशु मसीह ने कहा शैतान से, devil man doesn't live by bread alone, इंसान सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा, but by every word that proceeds out of the mouth of the बल्कि Father. हर इस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। In the final temptation, Satan took Jesus onto a very high mountain. और जो आखिरी आजमाइश में खुदा यीशु मसीह को इब्लीस हैकल के किंगरे पर ले जाता है And showed him all the kingdoms of the world that he had possessed. और तमाम दुनिया की शान और शौकत उसको दिखाता है। Now understand, और इस बात को समझें, Satan had dominion over the earth. इब्लीस के पास कुव्वत है, He was ruling over nations. वो तमाम कौमों पर हुकूमत करता He है, was ruling over religion. वो तमाम मज़ाहिब पर हुकूमत करता And he है। looks to Jesus वो खुदा यीशु मसीह को and देखता said, है I'll give it back to you, और मैं वो कहता है but you got to worship me. क्या तुम अगर मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगा, अगर तुम And Jesus says, मेरे no, नाम को जब, you shall worship the Lord God only. और क्योंकि इस तरह से आप खुदा के नाम को जलाल देंगे, And so Jesus did not sin. क्योंकि खुदा ने कोई गुनाह नहीं किया। And without going into all the stories, और हम इस स्टोरी के बारे में जानते हैं, we know that when Jesus got to the end of his life as a man, और जब देखते हैं कि बनी नौ इंसान खुदा की जिंदगी में आता है, it wasn't the end of his life because he was old. और हम देखते हैं It came the time that he would submit himself to his word. और बनी नौ इंसान को चाहिए कि वो अपने आप को खुदा की ताबेदारी में दे। Hear what I'm saying. आप समझे मैं क्या कहना चाहता हूँ? He is the word. वो क्योंकि खुदा जिंदा खुदा है, The prophets prophesied in the word क्योंकि इसके बारे में तमाम जो नबूवत की गई है, that God himself would fulfill his word. क्योंकि खुदा खुद अपने कलाम को पूरा करता है। And the prophets prophesied और फिर जो नबूवत है, अंबिया किराम ने नबूवत की है, that God himself would suffer for the sins of mankind. और जो बनी नौ इंसान को जो खुदा से जुदा हो चुके हैं, Within God's word, God put it within his plan और खुदा ने बनी नौ इंसान के लिए एक मंसूबा बनाया, that he himself would come and give his life in exchange for all of और mankind. क्योंकि वो जमीन पर आया ताकि आपके लिए उसने अपने आप को तब्दील किया। The prophets prophesied that he would be bruised for our transgressions. और खुदा के कलाम में बताया गया है कि अंबिया किराम ये बात बताते हैं कि उसने हमारे लिए अपने आप को तब्दील किया, That the chastisement of our peace would be laid upon him. और हमें क्या है अपने आप को उसकी ताबेदारी में देना है।
The prophets also prophesied that he would die and go into the earth for 3 days and 3 nights. और फिर भी जो अंबिया कराम ने इस बात की नबूवत की कि जो है कि जो यीशु मसीह है वो कोहे कल्वरी पे मसलूब किया जाएगा और फिर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। But the prophets also prophesied लेकिन जो प्रॉफिट ने इस बात की भी प्रोफेसी that की because he had no sin, क्योंकि उसने कोई गुनाह नहीं किया था sin would not be able to keep him, और क्योंकि जो गुनाह है उसको रख नहीं सकता but that he would rise again on the 3rd day. और वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। And so this is Jesus. वो यीशु मसीह है। He's not the God of religion. वो मजहब का खुदा नहीं है He's not the God of Christianity. और वो सिर्फ मसीहत का मजहब खुदा नहीं है, He's the God of believers. वो तमाम ईमानदारों का खुदा है। Those who believe that He is God Almighty who came जितनी in the जिंदगी flesh. इस बात पर ईमान रखती है कि वो हमारा जिंदा खुदा है, Those who believe that He paid the penalty for their sins individually. जितनी जिंदगी इस बात पर ईमान रखती है कि उसने मेरे गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया और मेरे गुनाहों का कफारा दिया, Those who understand and believe that when Jesus rose from the dead, जितनी जिंदगी इस बात पर ईमान रखती है कि खुदा यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे that He took from Satan the keys to death, hell, and the grave. और फिर उसने आलम अरवाह में से जो इब्लीस से जो कुंजियां ली And when He took those keys, और उसने वो चाबियां He willfully gave them back to us, और उसने फिर दोबारा खुदा को दी। saying that as God's word comes alive in your heart, जब खुदा का कलाम जिंदा होगा आपके दिलों में you're going to find that the one who spoke the word तो फिर आप उसकी तलाश करेंगे जो खुदा के कलाम में बोला जाता है will complete the word. तो वो मुकम्मल करता है खुदा को। I opened up with this passage. मैं इस पैसेज के साथ शुरू करना चाहता हूँ। God is not a man that He should lie, लेकिन खुदा इंसान नहीं है nor is He the Son of Man that He's going to change His mind or repent. और खुदा के लिए हमें क्या है अपने ज़हनों को बदलना है But He goes on to say, has He said it? और खुदा वो करता है जो उसने कहा है Shall He not do it? और वो क्या ऐसा नहीं करता Has He said it? और जैसे उसने कहा है Shall He not make it come to pass? वो क्या क्या माजी को जानता है। So tonight, the gathering here in this region of Pakistan आज जब हम इकट्ठे हैं इस इलाका में is because God is watching over His word to perform. क्योंकि आज खुदा देख रहा है कि उसके कलाम की तबलीग की जा रही है। And the prophet Zephaniah said in the last days क्योंकि हम देखते हैं कि जो ज़फन्याह नबी है वो आखिरी अय्याम के बारे में बताता है that God will begin to gather those who have been scattered. और खुदा उन सबको इकट्ठा करेगा जो दूर हो चुके हैं। Jesus even spoke जीसस बात करता है in Matthew chapter 13 about the time of the harvest in the last days. क्योंकि खुदा का कलाम सिखाता है मत्ती के अंजील में कि फसल तो बहुत है That the angels of the Lord will begin to roam throughout the earth to bring in the people. और खुदा के जब लोग आएंगे जो ईमानदार लोग होंगे। If you're in this room tonight अगर आज आप यहाँ पे मौजूद हैं or you're hearing me, और आप मुझे सुन रहे हैं, God wants you to know He loves you. आप खुदा जानता है कि आप उससे मोहब्बत करते हैं And He has prepared a place for you. और उसने आपके लिए जगह तैयार की है। He Himself has prepared a place for you. उसने आपके लिए जगह तैयार की है And the place that He prepared, you cannot earn. और वो आप वो जगह तभी आप हासिल कर सकते हैं जब आप उसके लिए तैयार होंगे, You must receive it as the gift of God. क्योंकि इस तरह से आप खुदा के तोहफे को हासिल कर सकते And हैं। so Zephaniah says these words. क्योंकि ज़फन्याह नबी इस बात को बयान करता है The Lord our God who is in the midst of us, और जो खुदा जिंदा खुदा है He alone is mighty to save. और वो अकेला ही ऐसा कादिर मुतलिक है। In the book of Acts it tells us क्योंकि अमाल की किताब ये बात को बयान करती that है there is no other name given under heaven whereby men might be saved. आसमान और जमीन में कोई ऐसा नाम नहीं बख्शा गया, For His name is Jesus. वो नाम यीशु मसीह है। Hebrews tells us that when Jesus rose from the dead, क्योंकि अब्रानियों का खत जो पलूस रसूल के नाम है वो ये बयान करता है that He obtained a name that's higher than every other name. जो यीशु मसीह का नाम है वो बुलंद वाला है And it's through His name and faith in His name और जब हम उस पर ईमान रखते हैं that the power of God manifests in our midst. तब खुदा की कुदरत हमारी जिंदगी में काम करती है। So here's why I'm here tonight. इसलिए मैं आज आप सबके दरमियान मौजूद हूँ। Many of you are already born again. मैं जानता हूँ कि बहुत सी जिंदगियाँ नए सिरे से पैदा हो चुकी हैं। You've already accepted Jesus as your Lord and Savior. आपको एक्सेप्ट करने की जरूरत है कि खुदावंद हमारा शख्सी निजात दहिंदा है। You are a new creature.